गाइस हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लाइब्रेरी से ही आज शुरू करें तो चलते हैं डिपार्टमेंट के लिए। गाइस देख रहे हैं काफ़ी शानदार रंगोली बनी हुई है। 2 hours later. इसके अंदर एक सेमिनार हो रहा है। It's a global WhatsApp group. I don't know who prepared it, so it's around 200 around people. So I just ping in my random times ki anybody ups for a mock interview. So I got some replies and someone from China, someone from Kenya, Uganda, Pakistan, and also Gambia. So this Gambia person, his name is Ali. He has a full name, difficult to pronounce, but Ali, and we got connected. So then every day we had this mock interview. So for me it's the 7 o'clock in the evening, and for him it's the lunch break there, Gambia. So every day we had this, mock interview. We asked, so one day one question, that was our plan. One day one question. The questions will be like, tell me about your leadership journey, tell me about how good at your networking, how good at you are, making strategies, or what is the one challenge you face in your sector in the country. So many of these questions will come up. So we used to take one question one day and we prepared very well. And Ali got his interview first. And after 3 days, I got my interview. After his interview, Ali called me first. He didn't call his wife. He called me first and hi Raj, I'm so happy. Those questions were asked. And after 3 days, I got my interview completed. I also called Ali. So we were very hopeful कि हम दोनों को मिल जाएगा. Because from the first day, I had some intuition कि okay, some positive is going to happen. That intuition you have, no? So again, when the June month comes, so it happens like first they release results in the Africa, then you come to the Middle East, then South Asia, ऐसा करके चला जाता है. एक साथ नहीं करते release. So in the group itself, if the results are coming, okay, आज गैम्बिया में मिल गया, केनिया में मिल गया, कल इंडिया में आएगी, इंडोनेशिया में आएगा, ऐसा करते हैं. So unfortunately, मैं अली को नहीं मिला है. मैं पूछने जा रही थी अली को मिला या नहीं मिला. So we were actually having so many dreams of exploring London together. Though we applied for different universities, but we planned to meet in London. So many. We also thought of, bringing our parents for all these things we planned, but everything has got collapsed. And I was so upset. Ali is more upset than me. Then I went to UK. I used to message him every week. I call him. I send him photos. The bhai aaj maine London gaya. Hindi mein nahi, of course, Hindi mein nahi hai, but you know what happened? I met Ali. अच्छा, very interesting. You know where it? In Trivandrum. Very nice. So like the way you said, you have students. So one fine day, Ali texted me when I was UK. Ali texted me, and he was saying, Raj, I'm coming to India. I was like, wow, that's a good news. So he's coming to India for his higher studies. So I think here also we have some students from. So the same way. Yeah. And I was like, so happy, man. Where are you straight coming? He said some something. He can't pronounce Thiruvananthapuram. So he said Thiruvananthapuram, University of Kerala. I was like, damn, this is my place, this is my village. So I was like so happy. Then I came back to India, and the second day I went to Trivandrum. I met Ali. I still have that photograph with Ali. So that's what I mean. If you really, sir, Alchemist says no. अगर तुमको इतना चाहते तो मिलेंगे तो वो गाम्बिया से ट्रिवांड्रम आया. और उन्होंने अफगानिस्तान में भी अप्लाई करके रखा था, बांग्लादेश में अप्लाई करके रखा था, वो कहीं नहीं मिला उसको, केरल में मिला. अगर इंडिया में और कहीं होता तो तभी नहीं होता, मिल पाता. ट्रिवांड्रम में आया. So that is a good kind of emotional moment. Sir, for your enlightening and inspiring words. Your insights have given us a fresh perspective and much to reflect on. We truly appreciate the time and effort you have taken to share your wisdom with us today. Your words will surely leave a lasting impact on all of us. Once again, thank you for your valuable presence and guidance. Now, to conclude this wonderful session, I would like to invite Namrata Rathore to deliver the vote of thanks. आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ आज इस सभा में उपस्थित सभी का एक बहुत ही बड़ा योगदान है।
इस वर्कशॉप को कराने के लिए हमारे विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ और एकलव्य ग्लोबल फाउंडेशन ने मिलकर अपना सहयोग दिया और इस वर्कशॉप को कराने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विश्वविद्यालय प्रशासन का, जिन्होंने हमें यह सीज हॉल देने की अनुमति दी कि हम लोग यहाँ पर अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकें। मैं संगीता सक्सेना मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और मैम ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय हमें दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रवि सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ अपनी उपस्थिति दी और सर ने हमें सर के बारे में अच्छे से समझाया। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एकलव्य फाउंडेशन का, जिन्होंने रजनीश सर को भेजकर हमें हमारे लिए एक नई सीढ़ी तैयार की और वो हमें एकदम बहुत ही अच्छे से विवरण देकर के सर ने हमें समझाया। हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा अवसर था और कई बड़ी मात्रा में बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने आपसे गाइडेंस लिया। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर उपस्थित सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मत करना, मैंने जैसा बोला ना, एक साल में एक दिन भी तुम लोगों को खाली बैठने का मौका नहीं मिलेगा। वन थिंग, कंटिन्यूस करना, कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहना। दूसरा है कि थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्यों करना है। अगर ये क्लैरिटी है तो हम सब कुछ लिख पाओगे अच्छा से। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव ए मेंटर, एक साथी होना चाहिए, एक को ट्रैवलर। वो मेंटर हो सकता है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, तुम्हारा पापा मम्मी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अकेले जाना नहीं हो पाता है। एक साथी। So for you, who was your mentor? My girlfriend. तो बस ये लोग गर्लफ्रेंड कर लेंगे और काम करेंगे। इसीलिए पूछ रहे हैं उनका, बस सही है सर, अच्छे दिख रहे हैं। तो फाइनली गाइस देखेंगे जो सेमिनार होना था हो चुका है, सारे लोग निकल रहे हैं तो हम भी निकलते हैं यहाँ से। जो सेमिनार होना था हो चुका है, काफ़ी बेहतर रहा। ज़्यादा समय तो नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिला कैप्चर करने की कोशिश किया, वो आपको दिखाने की कोशिश करिए। तो अभी चलता हूँ सर से बात करता हूँ। मेन पर्पज़ ये है कि आप फ़ौरन कैसे जा सकते हैं पढ़ाई के पर्पज़ से, क्योंकि आप तो जानते हैं काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे जा सकते हैं। तो अभी सर से मिलेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप फ़ौरन कैसे जा सकते हैं। हमारे रितेश भाई भी बहुत दिन के बाद दिखे हैं। इनको भाई साहब मैंने देखने के लिए मतलब बहुत समय दिया है। अरे कहना क्या चाहते हो रितेश जी को, लेकिन फाइनली मुलाकात हो गई। क्यों रितेश भाई? सही बात। तो स्कूटी वेट कर रही है, चलते हैं। सेमिनार हमने सर का देखा, काफ़ी अच्छा लगा। सर एकलव्य फाउंडेशन से हैं, जो कहीं ना कहीं जो इंडिया के लोग हैं उनको फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए पहुंचाया जाता है। तो सर पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि आखिर एकलव्य फाउंडेशन है क्या? देखिए, एकलव्य फाउंडेशन में मैं एक मेंटर हूँ। जैसे कि हमारा दोस्त राजू केंद्रा ने ये शुरू किया है। अच्छा, उनका काफ़ी अच्छा विचार है कि जो बच्चे लोग हैं जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज कैटेगरी से जो आ रहे हैं, उनको एजुकेशन से थ्रू उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्थिति को सुधारें और उनको अच्छा थोड़ा पॉजिटिव लाए उनका लाइफ में, लिविंग स्टैंडर्ड इनकरेज करें। तो हम एजुकेशन को से टूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मान रहे हैं एकलव्य फाउंडेशन, क्योंकि एजुकेशन ही है हमें जो आगे लेके चलेगा। तो और हमारे लिए जो वैल्यू है जो ज़रूरी है हमें इंस्टिल हो जाए, तो ऐसा हम मान रहे हैं, एजुकेशन को ऐसे टूल मान रहे हैं। तो खास करके एकलव्य फाउंडेशन जैसे जिन बच्चे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास जो गाइड करने के लिए कोई नहीं है, उनके पास ऐसा एक गाइडलाइंस लाइट नहीं है। तो ऐसा बच्चे लोगों के लिए हम एकलव्य फाउंडेशन काम कर रहे हैं। प्रोसेस क्या है? जैसे कोई इंडिया से कोई फॉरेन पढ़ने के लिए जाना चाहता है, तो वो कैसे जा सकता है और आपसे कैसे जुड़ सकता है? जी, देखिए, ये फॉरेन स्टडीज़ का बारे में जो खास करके जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आजकल ज़्यादा एक्सपोजर है मेरे हिसाब से। अगर आप 10 साल के पहले का देखो और अभी का देखो तो एक्सपोजर काफ़ी है कि इस बच्चों को पता है कि कैसे करना है, प्रोसेस क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, कैसे एप्लीकेशन करना है। बट फिर भी देर आर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मैं पहले बात कर रहा था
कि वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज कैटेगरी से आ रहे हैं। वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हम कहते हैं, उनका परिवार में पूरा ख़ानदान में वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, वो पहले बार स्कूल जा रहे हो। उन बच्चों के लिए गाइडेंस का बहुत बड़ा ज़रूरत है। तो वो जो गैप है वहाँ पे वो एकलव्य फाउंडेशन फील करते हैं। तो वी आर हियर टू सपोर्ट दोज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कमिंग फ्रॉम SC ST PVTG कैटेगरीज, खास करके उनको जो गाइडेंस है, जो ज़रूरी है और उनको जो सपोर्ट चाहिए वो हम दे देंगे। वो इसके लिए हम 1-to-1 मेंटरशिप का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसकी एक बच्चा है हमारे एक मेंटर के साथ जुड़ा हुआ है। मेंटर का भी बात करें तो मेंटर भी यही इन बच्चों है हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ा है। वो पहले हमारा एकलव्य के मदद से बाहर जाके पढ़ाई करके वापस आए, उनको हम मेंटर मानते हैं। तो हमारा ये आशा है कि जिन बच्चे हमसे एकलव्य फाउंडेशन से फ़ायदा उठाकर जो बाहर गया है वो भी ऑटोमेटिकली हमारे एक मेंटर बन जाता है। तो ऐसा वैल्यू हम एक को पास ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सर जैसे कोई बच्चा जुड़ना चाहता है जी आपसे, तो कैसे जुड़ सकता है? बच्चे को जुड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है हमारा। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। हमारा वॉलंटियर्स है, हर एक कैंपस में हमारा वॉलंटियर्स है, हमारा सोशल मीडिया पेजेस है, हमारा वेबसाइट है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारा मेंडर्स का भी डिटेल्स इजीली अवेलेबल है हमारा साइट में। तो अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वो नॉर्मल फ़ोन कॉल से भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम अपना नेटवर्क भी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, हर एक यूनिवर्सिटी तक पहुँच रहा हूँ। आज मैं यहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, तो आज मुझे लग रहा है कि मैं 50-60 बच्चों के साथ बात किया हूँ। तो 50-60 बच्चे को अभी एक आइडिया मिल गया कि कैसे एकलव्य को उसका फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए। तो ऐसा हम अलग अलग यूनिवर्सिटी जाने का सोच रहा हूँ। तो हम अपना नेटवर्क बढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क वाइडन कर रहा हूँ। तो ऐसा सुविधा है, हमारा जो कॉन्टैक्ट्स हम सब सारे एक्सेसिबल रख रहा है, तो उससे हमें अप्रोच कर सकते हैं। एक बार अप्रोच करने के बाद फिर हम उसको एक एक्सेस करते हैं कि वो बच्चे को क्या ज़रूरत है, उनको कहाँ सपोर्ट चाहिए, उनको कैसे एक पूरा 1 साल का मेंटरशिप प्रोग्राम हम कैसे डिज़ाइन करें, वो भी 1-to-1 के हिसाब से हम आगे लेके जाएंगे। सर काफ़ी अच्छा लगा, आपने बच्चों को गाइड किया कि कैसे कांटेक्ट करके वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखेंगे तो बहुत से बच्चे हैं जो जाना तो चाहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है कि वो कैसे पहुंचे। तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल आएगा कि आपसे कांटेक्ट करें और आप उनको गाइड करेंगे कि कैसे वो फ़ौरन जा सकते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें जो अवेलेबल है आज के दिन में, उनके बारे में बच्चों लोग को पता ही नहीं है। तो हम वहाँ पर भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन में अवेलेबल है, वो कैसे हम लिवरेज करें। वो लिवरेज करने के लिए बच्चे को कैसे हेल्प करें। तो ऑलरेडी जो रिसोर्सेज है वो हम उसको भी मोबिलाइज़ कर रहा हूँ। बाकी बच्चों का स्किल के ऊपर, कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा एक होलिस्टिक वे में एकलव्य फाउंडेशन काम कर रहा हूँ।